Hi, so again welcome to DCA. Today I will be discussing about a common question which I am getting these days, right? And this is frequently discussed by, I can say that many of the aspirants who are not aware of the syllabus, right? Because I personally recommend that whenever you prepare for any exam, please go through the official syllabus if it have. Of course, majority of the exam releases their syllabus, and if I talk about NDA or CDS, they release their syllabus. NDA is too specific about the syllabus because they mention even the content of the social science, physics, chemistry, biology separately, right? So when they ask you what to skip, right? So I got a question like, sir, कम्युनिकेशन चैप्टर में कौन सा टॉपिक करने मॉडर्न पढ़ना है और एसी सर्किट में क्या स्किप करना है कितना करना है. Let's suppose a student was asking कि वो what about the majority organic reaction, do I need to remember the name of all, right? Similarly if I say that कि bio में क्या NCERT के सारे topics करने हैं, right? So this question I just make it a common one, like what to skip. First thing, whenever you appear for any exam, right, especially the NDA has a specific syllabus, you should check the official syllabus. It's given in the PDF on the official portal, right? You should download. If you haven't, अभी तक आपने नहीं किया तो आपको देखना चाहिए. Please take a print of the syllabus, right? आप उसको अपने पास रखें, कॉपी के पास रखें, and whatever is mentioned, please try to have at least 4 or 5 numericals, 4 or 5 MCQs, not numericals, from that topic. Let's suppose if you talk about the acid base, which is mentioned in the syllabus of chemistry, right? Please go through that, that class 10th NCERT acid base chapter. Question will be 200% from that book. चाहे वो CDS हो NDA हो, उस chapter से question होता ही होता है. Commonly used compounds, that is also present in that book, right? आपको communication chapter physics का नहीं पढ़ना है. It's not the complete 12th or complete 12th 11th chemistry physics which is in the syllabus. ऐसा नहीं है, right? आप इस बात को समझिए कि 11th 12th का पूरा सिलेबस नहीं है साइंस का उसमें. और कुछ लोग इसी चैप्टर में, मैंने देखा कि कहीं सर आई हैव कंप्लीटेड ट्रांजिस्टर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम का लेक्चर मैंने अटेंड कर लिया, बट दिस आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिलेबस. आप अपना टाइम उस पर बर्बाद कर रहे हैं, राइट? इट्स बेटर टू इन्वेस्ट टाइम ऑन समथिंग विच कैन रिवार्ड यू सम मार्क्स, right? For that you need to be aware of the syllabus. I have told it repeatedly. In fact, it's redundant from my side because मैंने अपने previous हमारे हम कोचिंग में भी बोलते ही रहते हैं, whenever a student join, the first thing I say that please have a copy of the syllabus. और जो भी आपको पढ़ाया जाता है आप प्लीज वेरीफाई कर ले कि क्या वाकई वो सिलेबस में है कि नहीं. ऐसे तो पूरी दुनिया का ज्ञान है, राइट? अब जैसे कुछ लोग मैंने देखा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए वो इतनी मोटी किताब खरीद ली उन्होंने, रेड कलर वाली, राइट? वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में, वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा सिलेबस में नहीं है. रेनेसा इज द टर्म इन सिलेबस, यू नीड टू नो दिस, राइट? सम मेजर रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन सिलेबस में. इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरा थीम्स इन हिस्ट्री का वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ जाओ, राइट? पढ़ोगे तो भी 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने, वो भी होना एक आध ही है, बहुत मुश्किल है, राइट? इज टफ. सो इनपुट इज टू आउटपुट शुड बी गुड इनफ. आप किसी चीज पे टाइम लगाओ तो उसका आउटपुट अच्छा होना चाहिए, राइट? मतलब आउटपुट मतलब आपके लिए मार्क्स है. Those you score 5, if I talk about NDA 2020 written score, in fact the final score as well, you can see that many of the candidates have scored more than 500, 530, 540 as well, right? Reason they score, they always score more than 180, 190 in mathematics. It's not a big deal. It's not a big deal, right? You can see, I can give you a guarantee that this time you can check out many of the candidates. I will show you the scorecard as well. From our institute will be scoring more than 230, 240 in mathematics, राइट? एग्जाम के बाद आप उससे रोल नंबर ले लेना, राइट? सो नाउ इट इज बिकॉज टीईएस के आने के बाद सिनेरियो चेंज हुआ, राइट? होगा क्योंकि नेक्स्ट टीईएस जेई मेंस बेसिस. तो नाउ इट इज अ गुड कैंडिडेट्स आर आल्सो अपीयरिंग फॉर एनडीए. सो 200 इज इजी टास्क फॉर देम, बहुत आसान है. तो आपको ना सिलेबस ट्रेंड का मतलब, लेट्स सपोज मैं कोनिक सेशन का 200 क्वेश्चन कर रहा हूं, दिस इज बेवकूफी, नॉट ए गुड आइडिया, राइट? आप उसका 100 क्वेश्चन करो, 50 करो, 100 तो आप करने का टाइम भी नहीं है, जिससे कि क्वेश्चन ज्यादा आने. आप डिफरेंशियल कैलकुलस का कर लो, ट्रिगो पे कर लो, एंड ट्राई टू लर्न एलिमिनेटिंग स्किल्स फ्रॉम द ट्रिगो एज वेल, बिकॉज इन एनडीए 2020 यू मस्ट हैव सीन दैट ट्रिगो वाज स्लाइटली लेंथी, यू कैन से. तो आपको थोड़े बहुत वैल्यूज पुट करके एलिमिनेट करके आना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस के साथ आता है. देयर इज नो मैजिक रूल, राइट? अब मान लो कि मैं कुछ क्वेश्चंस कर दूं, इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा उसी हिसाब से कर लेगा, ऐसा नहीं होता, राइट? मैथ्स की फैकल्टी भी एक्सपीरियंस के साथ ही ये सब चीजें सीखते हैं, कोई भी चीज, इवन वी डू, राइट? वी कीप ऑन लर्निंग थिंग्स डे बाय डे. हम भी चीजें को सीखते हैं कि नहीं, अच्छा नहीं इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे तो ज्यादा आसान होता, राइट? सो आप अपने फोकस जो ना सिलेबस पे रखो. प्लीज डोंट नेग्लेक्ट बायोलॉजी सेक्शन.
ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग एटलीस्ट 7 आउट ऑफ 10 करेक्ट। और बायो में ना बहुत सिलेबस नहीं है, इट्स क्लियरली डिफाइंड। फूड, विटामिन, प्रोटीन्स वाला, सेल्स वाले से एक क्वेश्चन, डिजीज से एक क्वेश्चन, ग्लैंड वाले से एक क्वेश्चन। सो यू शुड स्टिक टू द सिलेबस, राइट, एंड ट्राई टू डू एटलीस्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म विच इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम, डेफिनेटली। मतलब 400 लाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 500 प्लस चाहिए होता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है, स्पीड तभी बढ़ती है, एलिमिनेशन स्किल्स बढ़ती है, समझ बढ़ती है जिसको आप कहते हो, राइट। सो आप एज ए होल कोई चीजों को ना देखो, ट्राई टू लुक एज ए टॉपिक। इफ इट वॉज एज ए होल टाइप, लेट सपोज कि सीडीएस में लिख देते हैं एनीथिंग फ्रॉम द ग्रेजुएशन लेवल, राइट, ऐसा कुछ होता है, उसमें अलग से सिलेबस नहीं देते ज्योग्राफी का, बट आपके में दिया हुआ है। आपके में सोशल साइंस, जिसको आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स करते हो, सिलेबस गिवन है। अब जैसे कुछ लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, इट्स ए गुड बुक, राइट, भगवान है पॉलिटी का, बट क्वेश्चन तो चार ही आएंगे ना, या 5 आएंगे, और 5 में 5 आप नहीं कर पाओगे, आप करोगे कितना, 3। सो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट अप विद द लक्ष्मीकांत इन दिस, राइट। अभी तो आपको बस थोड़े बहुत ऊपर टर्म्स पता हो तो भी काम चल जाएगा। डोंट हैव द टाइम, आप ज्यादा खपना नहीं चाहते, प्रीवियस कर लो, वो भी बहुत चलेगा, राइट, बट यू कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन द प्रीवियस। ट्राई टू डू क्वालिटेटिव क्वेश्चंस। एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करें, अगर आप तक आपने नहीं तक किया है तो 1 अप्रैल के बाद अगले 10 दिन 12 दिन मेक श्योर दैट यू आर डूइंग एटलीस्ट 50 to 60 एमसीक्यूज डेली, कम से कम। माना 30-40 मैथ्स का किया तो आप 40-50 साइंस का भी कर लो, इंग्लिश का भी 1-2 ट्राई मार लिया करो सेट, राइट, सो दैट कैन गिव यू एन आइडिया, राइट। आई गॉट ए कॉल दैट कि सर आई अटेम्प्टेड मैथ्स एनडीए 2018 पेपर and I was able to do, let's suppose in 1 hour I got 32 करेक्ट। मतलब मैंने 30 टफ क्वेश्चंस किए और मैंने 36 के करीब अटेम्प्ट किए, 32 करेक्ट हुआ। व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ गुड आइडिया? ये 1 आवर में एज्यूम करना बड़ा मुश्किल है ना, राइट, बिकॉज यू हैव टू पिक एंड चूज, बिकॉज इन आउट ऑफ दोज 120 क्वेश्चंस ऑफ कोर्स 40-42 आर वेरी इजी, राइट, विच यू नीड टू पिक एंड चूज, और वो आपको स्कोर दिलाता है, राइट। सो ये जो स्ट्रैटेजी वो लगभग हर एग्जाम में होती है, चाहे आप अपने सिविल सर्विस की बात करें या फिर सीडीएस की बात करें। इट्स ऑल अबाउट पिक एंड चूज। नॉलेज इज नॉट द ओनली थिंग, टैलेंट इज नॉट द ओनली थिंग, हार्ड वर्क मैटर्स, प्रैक्टिस मैटर्स, सक्सेस is a practice, and that's what at DCA we do. Make sure that you are practicing enough MCQs with the things which are in syllabus. That's the only key to score well in UPSC exam. Hope this session, hope this answer may satisfy your question. Thank you. Good luck.